ملتان کے انٹرنیشنل موٹیویشنل اسپیکر خواجہ مظہر نواز صدیقی صاحب جو اپنے پیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے والدہ کی وفات والے دن بھی بچوں کو پڑھانے پہنچ گئے. ان کا لائف سٹائل کیا ہے, زندگی کیسے گزارتے ہیں, دیکھیے اس ویڈیو میں. السلام علیکم سر, کیسے الحمدللہ سر, بہترین سر, الحمدللہ اللہ کا شکر سر, الحمدللہ. سر آپ کی زندگی میں کامیابی کا راز کیا ہے؟ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں ابھی کامیاب ہوں, بلکہ میں تو سفر پر ہوں, جسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں جدوجہد ہے, لگن ہے, کوشش ہے. تو میں اس راستے میں ہوں, اور یہ راستہ بڑا دشوار ہے, اور میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ ٹو سرف ہے. اور اللہ بھی جو ہے کائنات کے خالق اور مالک ہیں, وہ بھی ہر لمحہ انسان کی خدمت میں مصروف ہے. سر یہ زندگی کا سفر ایسے گزارتے ہوئے مشکلات کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑتا ہے, تو ان کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, قدم قدم پر نا آپ کے سامنے چیلنجز ہیں. آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مشکل, میں وہ لفظ استعمال کرتا ہوں چیلنج. تو جب آپ مشکل سمجھتے ہیں تو پھر آپ حوصلے کو ڈھہ دیتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو مشکلات کا سامنا ہو, اس کے لیے ایک اور بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے رہیں. یہ آپ کو کامیاب کرتی ہے. اور دنیا کی جو سب سے بری عادت ہے وہ پروکاسٹینیشن ہے, جس کو آپ ٹال مٹول کہتے ہیں, آج کے کام کو کل پہ چھوڑنا. تو ہمیں ہمیشہ اس چیز کے لیے ذہنی طور پہ تیار رہنا چاہیے کہ بہترین کی امید رکھنی چاہیے اور بدترین کے لیے تیار رہنا چاہیے. سر جس سٹیج پہ آپ اب ہیں اس پہ آپ آنا چاہتے تھے یا لکیلی آپ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اچھے کاموں کے لیے, یعنی آپ یہ خدمت خلق کے کاموں کے لیے خود کچھ لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے. اس سٹیج پہ سر آپ آنا چاہتے تھے یا میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کبھی اس کام کی کوئی پلاننگ کی ہو. جی ایسا نہیں ہے. یہ بہت سارے اتفاقات انسان کی منزل کا تعین کر دیتے ہیں. ایک میری چاہت ہوتی ہے, ایک رب کی چاہت ہوتی ہے. میں جو چاہتا ہوں وہ نہیں ہوتا, وہ ہوتا ہے جو رب کی چاہت ہوتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں میں جو کر رہا ہوں میری کوئی مجال نہیں ہے, یہ سب اللہ کی عطا ہے, اس کا کرم ہے, اس کا فضل ہے. تو ہم اچھا ارادہ رکھتے ہیں, اللہ ہماری نیت میں برکت دے دیتا ہے. سر آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میں نے گریجویشن کی تھی, اور الحمدللہ اس کے بعد مختلف ڈپلوماز لیے ہیں, ڈگریاں لی ہیں. تو اور خاص طور پہ میں نے ماسٹر آف ایتھکس اور ماسٹر آف مینرس بچوں کے لیے, اور پھر یوتھ کے لیے میں نے خاصی محنت کی اور پڑھا اور سیکھا اور ٹریننگ سیشن کیے, پاکستان سے بھی, بیرون ملک سے بھی. تو یہ کام, یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے. سر کتنے ملکوں کا سفر کر چکے ہیں؟ بے شمار ممالک کا سفر کیا ہے. وہ سارا جو میرا سفر تھا وہ کمپیئرنگ کے لیے تھا. میں بڑے جو کارپوریٹ کلچر کے ادارے ہیں, کمپنیز ہیں, اینول شو ہوتے ہیں, تو میں ان کے لیے کمپیئرنگ کرتا ہوں. اور 22-23 ادارے ہیں پاکستان کے, بڑے ادارے ہیں. تو مجھے وہ مدعو کرتے ہیں, کبھی ترکی میں, کبھی دبئی میں, کبھی کسی اور ملک میں. تو میں وہاں جاتا ہوں اور ان کے پروگرامز کرتا ہوں. وہ 2-3 دن کے پروگرامز ہوتے ہیں, تو میں وہاں رہتا ہوں. سر آپ ایک آرگنائزیشن چلا رہے ہیں, اس کا نام بتا دیں اور ان کے کیا آبجیکٹیوز ہیں سر, وہ ہمیں بتا دیں. ہماری آرگنائزیشن کا نام ابوبکر بھائی ارتقاء آرگنائزیشن ہے. اس کا کام جو ہے وہ سماج میں علمی, فکری اور سماجی جو انحطاط ہے اس خلا کو پر کرنا ہے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم انسان کی تربیت کریں اور بنیاد سے تربیت کریں جب وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے. بہت سارے کام ہیں جو آبجیکٹیو جو آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں, تو اس کا مین مقصد جو ہے لوگوں کی خدمت کرنا ہے. یہ صرف جنوبی پنجاب میں یا پورے پاکستان میں ہے؟ دیکھیں, شروع میں تو ہم نے ملتان شہر سے شروع کیا تھا, اب یہ ساؤتھ پنجاب میں ہو گیا. اصل میں ہمارا دائرہ محدود نہیں ہے, مگر ہم اپنے وسائل خود پیدا کرتے ہیں. ہمارے ساتھی ہیں, نوجوان دوست ہیں, ہم باہر سے کبھی اپیل نہیں کرتے کہ ہمیں ڈونیشن دی جائے. جو ہمارے پاس وسائل ہیں ہم ان میں رہ کر کام کرتے ہیں, اور اللہ کی توفیق سے کرتے ہیں, اس کی مخلوق کے لیے کرتے ہیں, اور خدا مخلوق کی خدمت سے خوش ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے ہم پاکستان بھر میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی اپنے دائرے کو بڑھائیں گے. آج سے کتنے سال پہلے سر یہ سفر شروع کیا تھا آپ نے؟ سر میرا تو یہ سفر 1992 سے شروع ہوا تھا. تب میں پھول قلم میں تھا, پہلے ملتان کا صدر رہا, پھر بعد میں پنجاب کا صدر بن گیا. ہم نے وہاں سے سفر شروع کیا تھا. پھر 2002-3 میں ہم نے اس کا نام رکھ دیا تھا پاکستان چلڈرن اینڈ یوتھ فورم, PCYF. تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کا نام ارتقاء آرگنائزیشن رکھ لیا, اور یہ 2011 میں اس کا قیام عمل میں آیا. اور اس سے شہر بھر کے لوگ مستفید ہوتے ہیں اور اپنے محدود وسائل میں رہ کر لوگوں کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. سر پاکستان میں کن بڑی شخصیات سے آپ کی ملاقات ہو چکی ہے؟ بڑی شخصیات تو میں انہیں کہتا ہوں جنہوں نے کچھ سماج کے لیے کچھ کرہائے نمایاں سر انجام دیے ہوں. میری زمانہ طالب علمی میں جب میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو میری عبدالستار ایدی صاحب سے ملاقات ہوئی. تب یہاں ملتان میں ہم نے ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا تھا اسٹیشن پر. سندھ کا علاقہ تھا سانگی, مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے.
सानिया सांगी उसको कहते थे। वो एक ट्रेन का हादसा था जिसमें सैकड़ों लोग जान से हाथ धो बैठे थे। तो वो मेरी पहली मुलाकात अब्दुल ईदी साहब से हुई थी, जो पाकिस्तान में एक बड़ा मुतबर हवाला है, दुनिया भर में उनकी मिसाल नहीं मिलती। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई थी और मैं उनसे बड़ा मुतासिर हूँ। फिर उनसे बेशतर औकात मुलाकातें रही। वो मुल्तान भी आते थे, हम कराची जाते थे तो उनसे मिलते थे। उसके बाद मेरी हकीम मोहम्मद सईद साहब से मुलाकात हुई, जो गवर्नर सिंध थे और उन्हें कत्ल किया गया था, वो शहीद हो गए थे। उनका रिसाला था नौनिहाल, जो कराची से निकलता था बच्चों का। तो मैं नौनिहाल असम्बली में भी शिरकत करता था, वहाँ इज़हार ख्याल भी करता था। तो हकीम सईद साहब से मैं बड़ा मुतासिर था। वो भी एक बड़ी शख्सियत है। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं और एक शख्सियत ऐसी है जिनसे मैं नहीं मिल सका, मुझे बड़ी हसरत है। वो मौलाना वहीदुद्दीन खान थे। वो इंडिया के थे और मैंने बड़ी कोशिश की मैं इंडिया जाकर दिल्ली में उनसे मिल के आऊँ। मेरे असल में वो मानवी उस्ताद है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरी ज़िंदगी में जो बदलाव है या तब्दीली है, ये उन्हीं के दम से है। सर आप कारोबार भी चला रहे हैं और पढ़ाते भी हैं, उन चीज़ों को किस तरह से, टाइम को किस तरह मैनेज करते हैं सर? अबू बकर भाई, अल्लाह ताला ने इंसान को बेशुमार सलाहियतों से नवाजा है। एक काबिलियत होती है, एक सलाहियत होती है। काबिलियत अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर रख दी है, अब उसको दरियाफ्त करना है और उसको सलाहियत बनाना है। बचपन से अब तक मैं बहुत जल्दी उठता हूँ, यानी सूरज तुलू होने से पहले उसकी तैयारी करके सोता हूँ कि मुझे सुबह वॉक करनी है, वर्जिश करनी है, योगा करना है, फिर ब्रेकफास्ट करना है, इस दौरान मुतालिया करना है और फिर मुझे 8:30 बजे से मैदान अमल में कूद पड़ना है। मैंने अपने ज़माना तालिब इल्मी में एक शॉप थी हमारे पड़ोस में, मुंशीगिरी की थी, इसको कहते हैं अकाउंट्स का काम किया था। वो कारोबार जूते का कारोबार था, तो फिर मैंने वही कारोबार अपने लिए पसंद किया। मेरा एक छोटा सा, जिसको आप कहते हैं कारखाना है, और एक डिस्प्ले सेंटर है। ये मेरी जो रोजी रोटी है वो वहीं से, मेरा किचन वगैरह वहीं से चलता है। तो बाकी जो ये लिखना पढ़ना है, तो ये अल्लाह ताला ने एक खास सलाहियत मुझे दी हुई है। मैं बचपन से ही कहानियां लिखता था, मज़ामीन लिखता था, कॉलम लिखता था। लिखते लिखते मैं पढ़ाने लग गया, पढ़ाते पढ़ाते मैं अब पब्लिक स्पीकर बन गया हूँ। मैंने ना अपने वक्त को हमेशा मैनेज किया। ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना, मैं समझता हूँ ये कोई मजमून नहीं है, असल चीज़ लाइफ मैनेजमेंट है। मैंने अपनी ज़िंदगी में मैंने फजूल वक्त ज़ाया नहीं किया। मेरे पास जो वक्त होता है मैं उसको अच्छे तरीके से मैनेज करता हूँ, और वो इसलिए कि मैनेज करता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। सर ज़िंदगी में कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का सामना आपने कैसे किया, उससे कैसे निजात हासिल की? देखिए, मैं 22-23 साल का था, मुझे पखाने में खून आया करता था। मुझे कहा गया कि आप किसी डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा ये बवासीर है, तो ये खूनी बवासीर है। तो मैंने उसका इलाज शुरू कर दिया। मैं पहले हिकमत का इलाज करता रहा, फिर डॉक्टर का इलाज किया, उन्होंने ये खूनी बवासीर नहीं है, तो ये तो बड़ी आंत का कैंसर है। तो मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि अल्लाह ताला, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपकी मखलूक के लिए कुछ करूंगा। 1997 में मुझे कहा गया कि आपकी ज़िंदगी जो है ना, एक्सपेक्टेड लाइफ वो 2 से 2.5 साल है। आप 2 से 2.5 साल जिंदा रहेंगे, इसके बाद आप अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो मैंने उसी वक्त फैसला किया कि ये डॉक्टर कौन होता है मेरी ज़िंदगी का फैसला करने वाले? मेरी ज़िंदगी और मौत का फैसला रब के हाथ में है। और जब आप ये फैसला कर लेते हैं हिम्मत के साथ, तो खुदा भी आपके साथ हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख लें कि मैं सारे काम भी करता हूँ। मुझे ये कहा गया था आपको औलाद नहीं होगी, उसके बाद मुझे 4 बच्चे हुए। आज मैं नाना भी हूँ, दादा भी हूँ, तो और मैं भरपूर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ आम लोगों से। गो मुझे तकलीफ है अंदर, मगर मैं उनको अपने ज़हन पे सवार नहीं करता। तो ये मुझ पर रब का एहसान है, मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी अता की हुई है और मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश हूँ और मुतमईन हूँ। सर आप अपनी काम के साथ इतनी सिंसेरिटी है, सिंसेरिटी का ये लेवल है कि आपकी वालदा की वफ़ात होती है, उस दिन भी आप पढ़ाने चले जाते हैं, इसकी क्या कहानी है सर? ओवरऑल हमारे समाज का जायजा लें, कोई काम नहीं करना, उसका बहाना ढूंढते हैं। पहले बहाना ढूंढते हैं, फिर काम से इनकार करते हैं। मैं हमेशा ना एक्सक्यूजेस से भागता हूँ। कोई कहना ये वजन ऊपर लेके जाना है दफ्तर में, तो मैं उठा के ले जाता हूँ। क्रिकेट खेलता था तो बॉल ना किसी छत पे जा पड़ती थी, तो मैं कहता मैं अभी लेके आता, तो मैं ऊपर चढ़ के छत से बॉल, ये नहीं कहता था कि अब तो हम नहीं खेलते रहे। जिस रोज मेरी वालदा फौत हुई थी, उस रोज मैंने 3000 स्टूडेंट्स के साथ खिताब करना था। तो मैंने अपनी वालदा का जब विसाल हुआ या इंतकाल हुआ, मैंने उन्हें सीधा किया, उनका मुंह बांधा, उनके पाँव बांधे, और मैं आके जिस ड्रेस में खड़ा था मैंने कंघा की और मैं कॉलेज में पढ़ाने चला गया। वहाँ एक बड़ा सेशन था, मुझे याद नहीं टॉपिक उसका क्या था, तो मैं वहाँ चला गया। मैंने 1.5-2 घंटे पढ़ाया। जब क्वेश्चन आंसरिंग का सेशन शुरू हुआ तो मैंने कहा भाई मैं बड़ी मजबूरी में यहाँ आया हूँ, मेरी वालदे की मैयत घर पड़ी है और मैं आपसे चूंकि वादा किया हुआ था तो इसलिए, और आप लोग इंतजार भी कर रहे थे, तो मैं आपको पढ़ाने के लिए आ गया था। क्वेश्चन आंसर का फिर किसी, तो मैं वापस आ गया। तो कॉलेज की 2-3 बसें भरी हुई जनाजे में शिरकत के लिए आई। तो ज़िंदगी का जो सफ़र है वो इसी तरह आगे बढ़ता है। आपने उस दरिया को अबूर करना है, उस संगे मील को पीछे छोड़ के जाना है, आगे बढ़ना है। सर आप पाकिस्तान भर में पढ़ाने के लिए जाते हैं, बैंकों में, अस्पतालों में, स्कूलों में, सर वहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट भी देते हैं, लाइक इनकम भी है वहाँ से आपकी? शौक है, सबसे बड़ा शौक जो है वो पढ़ने का है। और जब मैं पढ़ता हूँ तो फिर मुझे
हुक्म ये है कि आपने पढ़ा है जो दूसरों को भी सिखाए। हमारे पाकिस्तान में एक खला है कि सीखने वाले नहीं हैं तो सिखाने वाले भी नहीं हैं। अच्छा, जो चंद सिखाने वाले हैं तो वो मुखलिस नहीं है, उन्होंने इसको प्रोफेशन बनाया। मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, ये मेरा शौक है। यूँ समझ ले कि चोटी है कि मैं चाहता हूँ जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सीखा, मैं अपनी आने वाली नस्ल को भी सिखाऊं। ये जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, ये हमारा आने वाला कल है, और ये हमसे अगर सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तो हमारी जो छोटी छोटी दुनिया है, इसके बड़े बड़े मसाइल हैं, वो भी हल होंगे। और ये आने वाला कल बच्चों का ही है। मेरे कंधे पर चढ़कर मेरा बच्चा वो जहान देख रहा है जो मैंने नहीं देखा, तो इसलिए मुझे चाहिए कि मैं बच्चे के देखे हुए जहान को और अपने देखे हुए जहान को एक्सप्रेस करूं। क्योंकि ये इल्म जो है ये बेचने की चीज़ नहीं है, इल्म तो समुंदर है, और हमें दूसरों को इस समुंदर से सैराब करना है। और बहुत सारे ऐसे ज़राए हैं जिनसे मेरी ज़रूरतें मेरा रब पूरी कर देता है। हमारी सोसाइटी में सर मोटिवेशनल स्पीकर को इस तरह डिफाइन किया जाता है कि वो इस चीज़ को बताने के लिए कि वक्त बहुत कीमती है, वो 2-2 लाख चार्ज करते हैं। सर आप उस चीज़ को किस तरह डिफाइन करते हैं? वो मेहनत करते हैं तो वो उसका सिला मांगते भी हैं और लेते भी हैं, वो प्रोफेशनल लोग हैं। मैंने अर्ज़ किया मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ये मेरा पैशन है। हमारा काम कोई आम काम नहीं है, ये एक बड़ा मिशन है, ये अंबिया का मिशन है, ये औलिया का मिशन है, ये सुलहा का मिशन है, ये हमारे अकाबरीन का वस्फ था। और लोग हमारी मिसालें देखें, ये देखो ये शानदार कौम है, ये देखो ये मिसाली लोग हैं, ये देखो जिनके पास कुरान है, ये देखो जिनके पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है, ये वो कौम है जो अब दुनिया पर रूल कर रही है। आपको काम करना चाहिए। ये जो 2-4 लाख रुपए में अपने टैलेंट देकर चले जाते हैं, वो तो कार्रवाई करने के लिए आते हैं, वो तो कुछ बड़ा मकसद लेकर नहीं आते। हम तो लोगों को उंगली पकड़कर कुछ सिखाते हैं और मंजिल तक छोड़ के आते हैं। इसी के साथ नाजरीन अपने मेज़बान अबू बकर असलम को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए चैनल हमारा मुल्तान। अल्लाह निगहबान।